Today, in this lecture, we will discuss about the grinding wheel. Now, first of all, the definition of grinding wheel we have already discussed in the previous lecture, but we will discuss again to remember it. So, grinding wheel can be defined as a wheel which is made up of hard and sharp edged abrasive grains held together by a bonding material and is used to finish within closed tolerances various surfaces by its abrasive action is known as a grinding wheel. Now in this lecture we will discuss what are the elements of a grinding wheel. So a grinding wheel basically consists of six elements. First is abrasive particles, second is grain size, third is grade, fourth is structure, five is bond and bonding material, and the sixth one is wheel shape. So let us take the first one, abrasives. तो जैसे हमने कटिंग एक्शन ऑफ ग्रेन्स में देखा था, जब ग्राइंडिंग इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर रहे थे कि अब्रेसिव पार्टिकल जो हैं हमारे इररेगुलरली शेप्ड हैं एंड रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए ग्राइंडिंग व्हील. सो अब्रेसिव्स की डेफिनेशन की बात करें तो अब्रेसिव is a substance used for the removal of material by abrasion, scratching or grinding is known as abrasive. An abrasive particle is basically a hard material and small particles bonded together in different shapes, and generally a cylindrical shapes is given or conical shape may also be given to the abrasives. And abrasives are of basically two types, natural abrasives and artificial abrasives. In old days, natural abrasives are used like sandstone, quartz, emery, corundum, garnet, and diamond. Here is the list of 5 natural abrasives. And nowadays, artificial abrasives are used. Now, as compared to natural abrasives, artificial abrasives have better cutting properties and higher efficiency. So that is why nowadays artificial abrasives are commonly used. Now, what are the commonly used artificial abrasives? So we have two artificial abrasives which are commonly used. First one is silicon carbide. The formula is SiC, silicon carbide. Okay, and this is bluish green in color. Third property of silicon carbide is it is used for grinding very hard materials like carbide tools. No doubt other materials it can also grind, but is specifically used most suitable for grinding carbide tools. And the trade name कि मार्केट में ये किस नाम से जाना जाता है या इंडस्ट्रीज इसको किस नाम से ट्रेड करती हैं, तो क्रिस्टलोन, इलेक्ट्रोलोन, कार्बोरेंडम, these are the trade names. So we have basically 4 properties of silicon carbide. I am again repeating. Silicon carbide, the chemical formula is SiC. It is specifically used, best suited for
grinding carbide tools, and it is bluish in color, bluish green in color, and its trade names are crystalone, electrolone, or carborundum. Okay. Now, if we talk about the second artificial abrasive, then it is aluminium oxide. The formula is in front of you: Al2O3. Al aluminium 2O3, this one. Okay, so Al2O3. This is the and it's if we talk about the second property of aluminum oxide, it is brilliant white in color. Okay, the trade names are aloxide, alendum, or borolone, the names by which it is sold in the market. And कौन से मटेरियल को कट करने के लिए बेस्ट सूटेड है ये, बिकॉज फेयरली टफ होता है, काफ़ी टफ है, सो इसीलिए ये टूल स्टील एंड हाई स्पीड स्टील की ग्राइंडिंग करने के लिए बेस्ट सूटेड यूज़ किया जाता है. ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सो सिलिकॉन कार्बाइड की हमने 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस करी, इसी तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की भी 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस करी. ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है कि नेम दी say at least 4 names of natural abrasives and give some properties of artificial abrasives. Okay, now second property या second element of grinding wheel we have named it as grain size. जो abrasive particles select करे हैं, चाहे natural हैं चाहे artificial हैं, तो उनका साइज, ग्रेन साइज. तो ये क्या करते हैं हम, द अब्रेसिव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ग्राइंड मिल्स, कि चक्की के द्वारा इनको पीसा जाता है और इनको एक सीव्स के थ्रू पास करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सीव्स के साइज़ के हिसाब से इनका साइज का नाम दिया जाता है. तो ये हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है, जैसे कोर्स ग्रेन्स हैं, थोड़े से मोटे दाने हैं, ठीक है ना, एब्रेसिव पार्टिकल्स की, तो हम उनका नाम देते हैं 10, 12, 14, 16, 20, 24. ओके, अगर थोड़े से उससे मतलब कोर्स वाले से जो नेक्स्ट है नाम मीडियम, 30, 36, 46, 54, 60, एंड नेक्स्ट वेरी फाइन, देन 80, 90, 100, 120, 150, 180. ओके, 180 के बाद जितने भी हमारे एब्रेसिव पार्टिकल आते हैं, वेरी फाइन या सुपर फाइन, ये हमारे फिनिशिंग प्रोसेसेस में यूज़ किए जाते हैं. जनरल ग्राइंडिंग में तो हम 180 ग्रेन साइज तक ही यूज़ करते हैं. नाउ द मैटर इज़ हाउ वी आर सेलेक्टिंग दिस ग्रेन साइज. तो ग्रेन साइज सेलेक्ट करने का जो तरीका है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारे कितना मेटल रिमूवल रेट करना है, स्टॉक रिमूवल कितना करना है वर्क पीस के सरफेस से, या फिर सरफेस फिनिशिंग कितनी चाहिए हमें. तो ये दो जो फैक्टर्स हैं ये इफ़ेक्ट करते हैं द सिलेक्शन ऑफ ग्रेन साइज. या और भी हैं, जैसे नेचर ऑफ ग्राइंडिंग ऑपरेशन की, रफ़ है या फिनिशिंग है, मटेरियल कौन सा ग्राउंड करना है, मटेरियल रिमूवल रेट क्या है, सरफेस फिनिशिंग कितनी चाहिए, तो इस हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं. तो बेसिकली वी कैन से दैट द ग्रेन साइज इज़ डिटरमाइंड बाय द सरफेस क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स. सरफेस क्वालिटी की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम ग्रेन साइज सेलेक्ट करते हैं. जैसे बुक में 4th दिया हुआ है, बट हम इसको 3rd की तरह डील करते हैं. उसका भी रीज़न है, चलो पहले डिस्कस करते हैं. द ग्रेड इज़ आल्सो कॉल्ड द हार्डनेस ऑफ द व्हील, कि हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील हमने बनाया है, अब्रेसिव चाहे नेचुरल हैं चाहे आर्टिफिशियल हैं, चाहे उनका ग्रेन साइज़ क्या भी है, कोई भी नंबर हमने सेलेक्ट किया है, चाहे स्कोर से चाहे फाइन है, बट वो ग्राइंडिंग व्हील कितना हार्ड है, मीन्स इट डेजिग्नेट्स द फोर्सेस विद विच होल्ड्स द ग्रेन्स. ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील इट सेल्फ एज ए कंप्लीट बॉडी कितना हार्ड है,
तो उसकी हार्डनेस को इंडिकेट करने का ये तरीका है एंड इट इज नेम एज ग्रेड। अब greater bond content and a strong bond results in a harder grinding wheel। तो इसमें भी हमारे पास एक लिस्ट है। अगर ग्रेड की वैल्यू ए से लेकर ई तक है, बड़ी ABC की ABCDE, तो हम इसको बोलते हैं वेरी सॉफ्ट। देन नेक्स्ट इज सॉफ्ट कैटेगरी में हमारे पास FGHIJK, then medium LMNO, then hard is PQRS, then very hard जो हैं T से लेकर Z तक। अगर कोई हम एक लेटर यूज़ करते हैं एट ए टाइम एक व्हील के लिए, एक ही करेंगे, ओके, तो वो हमारा व्हील की हार्डनेस को इंडिकेट करता है, ओके। नाउ सेकंड important thing is that soft wheels are generally used for hard materials एंड हार्ड व्हील्स आर यूज फॉर सॉफ्ट मटेरियल्स। तो उल्टा यूज़ करते हैं। अगर हमने किसी हार्ड मटेरियल को ग्राइंडिंग करनी है तो उसके लिए हम सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील यूज़ करते हैं। उसका रीज़न भी हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम करते हैं कि हार्ड मटेरियल्स की ग्राइंडिंग जब करते हैं तो मैंने कहा सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील्स, सॉफ्ट ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील यूज़ करते हैं, ओके। तो इससे क्या होता है, द ग्रेन बिकम्स डल क्विकली, ओके, डल हो जाएंगे। जो आउटर लेयर जो है, बॉर्डर वाली जो ग्रेन्स हैं हमारे आउटर पेरीफेरी पे, जो एब्रेसिव पार्टिकल्स ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर चिपके हुए हैं, वो जल्दी से डल हो जाएंगे एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द ग्राइंडिंग फोर्स विच टेंड्स टू नॉक आउट द डल एब्रेसिव ग्रेन्स। दिस कीप्स द ग्राइंडिंग व्हील इन शार्प कंडीशन, ठीक है। इसका उल्टा कि हम सॉफ्ट मटेरियल्स की ग्राइंडिंग के लिए हार्ड व्हील यूज़ करते हैं। कैसे? तो द हार्ड ग्राइंडिंग व्हील्स while grinding soft materials will be able to retain the grain sharp for longer period, thus improving the material removal rate। फोर्थ एलिमेंट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो ये आपके सामने 3 स्ट्रक्चर्स हैं, ओपन, मीडियम एंड डेंस, ओके। नाउ स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है कि द स्ट्रक्चर ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील रिप्रेजेंट्स द ग्रेन स्पेसिंग, कि 2 ग्रेन्स के बीच में या सराउंडिंग ग्रेन्स के बीच में स्पेस कितना है, मतलब हाउ द एब्रेसिव ग्रेन्स आर पैक्ड इन द शेप ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील। तो इट कैन बी डेंस और ओपन, ओके, और मीडियम। द स्पेसिंग बिटवीन द ग्रेन्स allows for chips to collect. This helps avoiding the loading of the grinding wheel। तो अब कहता है ओपन स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर में थोड़ा सा देखिए, 2 एब्रेसिव ग्रेन्स के बीच में स्पेस है, ये ठीक है ना, ये वाला। तो ओपन स्ट्रक्चर्स आर यूज फॉर हाई स्टॉक रिमूवल, कि इनके बीच में हमारे चिप्स जो मटेरियल रिमूव हो रहा है वो लोडेड हो जाता है, तो हाई स्टॉक मेटल रिमूवल के लिए यूज़ किया जाता है। बट इट प्रोड्यूसेस ए रफ फिनिशिंग, ठीक है, जब ज़्यादा मटेरियल रिमूव होगा तो फिनिशिंग कम आएगी, वी नो। और अगर हम डेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें बड़े हाई सरफेस फिनिशिंग ऑब्टेन्ड होगी बट स्टॉक मेटल रिमूवल रेट कम होगा, और मीडियम सा चाहिए इन दोनों के बीच में, देन वी यूज़ द डेंस स्ट्रक्चर। सो वी यूज़ द वर्ड ओपन एंड डेंस to indicate the structure of the grinding wheel। करते हैं हम बॉन्ड एंड बॉन्डिंग मटेरियल, कि एब्रेसिव पार्टिकल्स कैसे एक दूसरे से चिपके हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं। तो ए बॉन्ड इज एन adhesive material employed for holding the abrasive grains together and giving it to the desired shape। जैसे हम घरों में खाना बनाने के लिए पहले आटे को पानी की हेल्प से गूंथा जाता है, तो पानी जहाँ पर जो है ये बॉन्डिंग मटेरियल है, और उसको हम गूंथ के जैसे भी शेप दे सकते हैं। इसी तरह से एब्रेसिव पार्टिकल्स को लेकर जो हमने सेलेक्ट किए हैं नेचुरल या आर्टिफिशियल, उनको एक उसमें एडहेसिव मटेरियल जिसको हम बॉन्डिंग मटेरियल बोल रहे हैं उससे गूंथ के
शेप कोई भी शेप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो बॉन्डिंग मटेरियल का काम होगा कि एब्रेसिव पार्टिकल्स को क्लोजली पैक रखना, एक दूसरे के साथ चिपका के रखना, और जैसी भी शेप देना चाहते हैं वो दे देंगे, ठीक है। तो लिस्ट हमारे पास सामने है। वी आर कॉमनली यूजिंग एडेसिव मटेरियल से विट्रीफाइड बॉन्ड वी, सिलिकेट बॉन्ड एस, शेलिक बॉन्ड कैपिटल ई, ठीक है, रबड़ बॉन्ड आर, बेकेलाइट और रेजेनाइट बॉन्ड बी, ऑक्सी क्लोराइड बॉन्ड। तो ये कुछ लिस्ट दी हुई है हमारे पास कौन कौन से हम एडेसिव मटेरियल्स एब्रेसिव पार्टिकल्स को टुगेदर होल्ड करने के लिए और शेप देने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम एक दो की बात करें, विट्रीफाइड बॉन्ड जो हमारा है, ये विट्रीफाइड बॉन्ड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये क्या करते हैं, इसमें एब्रेसिव ग्रेन्स एंड क्ले को थोरोली एक मिक्स्ड रिक्वायर्ड कंपोजिशन में लेकर मिक्स करते हैं, उसमें सफिशेंट वाटर डालकर। तो जो हमारा मिक्सचर बना, ठीक है, इसको हम एक मोल्ड में, जिसकी की ग्राइंडिंग व्हील की शेप का मोल्ड है, उसमें पोर करके उसको उसको ओवन में हम बेक कर देते हैं 700 to 730 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 12 to 14 डेज, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ग्राइंडिंग व्हील बन जाता है। अगर हम सिलिकेट बॉन्ड की बात करें तो एब्रेसिव ग्रेन्स विद सोडियम सिलिकेट मिक्स करके, फिर उसी तरह से हमने इसको मोल्ड में पोरिंग करके, जैसे कास्टिंग में मोल्ड लिया, मोल्ड में पोरिंग करके उसको हम बेक कर देते हैं 260 to 280 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 25 to 80 आवर्स, ठीक है। तो दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप कुछ अपने आप देख लेंगे बुक से, ठीक है। तो ये दो कॉमनली बॉन्ड्स हैं, विट्रीफाइड बॉन्ड एंड सिलिकेट बॉन्ड, जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा भी मैंने लिस्ट में कहा कि रबड़ बॉन्ड, बेकेलाइट बॉन्ड, ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड्स भी हम यूज़ करते हैं। व्हील है ये, ओके। ये आपने सब ने कॉमनली देखा ही हुआ है। एक ये इस तरह से व्हील है, ठीक है ना, इसके सेंटर में ये है होल है इसको होल्ड करने के लिए, और यहाँ पर एब्रेसिव पार्टिकल्स चिपके हुए हैं, ठीक है। ये इसकी थिकनेस है, ये फ्रंट व्यू दिखाया हुआ है। फिर ये एक व्हील है ओपन रिसेस व्हील, इसमें एक साइड पे रिसेस है, दो रिसेस हैं, टू रिसेस, ठीक है। सिलेंड्रिकल व्हील है, ओके। देन दोनों साइड्स पे टेपर है। ये कप वाला व्हील, फ्लेयरिंग, ये स्टेट कप बोलते हैं इसको, स्टेट कप, और ये फ्लेयरिंग कप, ये डिश टाइप सॉसर व्हील। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्क पीस एंड द ग्राइंडिंग कंडीशंस हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है ना। स्पेसिफिकेशंस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील में 6 एलिमेंट्स जो अभी हमने डिस्कस करे, ठीक है ना। तो फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं टाइप ऑफ एब्रेसिव्स। ये स्पेसिफिकेशंस वही हैं कि ताकि हम मार्केट से सही ग्राइंडिंग व्हील परचेज कर सकें, ठीक है ना। ये स्पेसिफिकेशंस पैरामीटर्स हम सप्लायर या मैन्युफैक्चरर को लिख के देंगे, ठीक है ना, ताकि हमें सही ग्राइंडिंग व्हील परचेज कर सकें या प्रोक्योर कर सकें। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड्स 551 इन 1996 मार्किंग सिस्टम ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स के लिए कैन से स्टैंडर्डाइज करी गई थी। तो पहला जो एलिमेंट है इसमें टाइप ऑफ एब्रेसिव्स, जैसे हमने बात करी कि एब्रेसिव्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं। से इफ़ वी आर यूजिंग Al2O3 तो हम सिर्फ सिंबल ए लिख देंगे उसके लिए, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड यूज़ कर रहे हैं तो सी लिख देंगे उसके लिए। देन वाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए WA, ग्रीन ग्रिड के लिए GC, ठीक है। तो हम पूरा इसका केमिकल फार्मूला ना लिखकर सिलिकॉन कार्बाइड का सिर्फ C, कैपिटल C वर्ड यूज़ कर लेंगे, ये लिख देंगे फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। देन सेकंड एलिमेंट वाज ग्रेन साइज। तो इसमें हमने लिस्ट हमारे सामने भी है और हमने डिस्कस भी करी थी
कि हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स का साइज़ इंडिकेट कर रहा है। तो उसमें हमने कोर्स ग्रेन, मीडियम ग्रेन, फाइन ग्रेन, वेरी फाइन, ये हमारे पास लिस्ट थी। 8 से लेकर 180 और फिर आगे 600 तक, ठीक है ना। ये हमें क्रैम करनी है और इसमें से एक नंबर से हम लिख देंगे C10। तो 10 का मतलब हो गया कोर्स ग्रेन। अगर हम बात करें से 100 तो फाइन ग्रेन, ठीक है ना। तो इस तरह से ग्रेड, ठीक है ना। फिर हमने इसमें भी यूज़ किया कि वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड, वेरी हार्ड। अगर कैपिटल ABC का लेटर ABCDE तक है देन दैट ग्राइंडिंग व्हील कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रेड वेरी सॉफ्ट, ओके। इसी तरह से अगर हार्ड यूज़ करें तो PQRS वेरी हार्ड, T से लेकर Z तक, ठीक है। फोर्थ एलिमेंट वाज स्ट्रक्चर, कि 1 से लेकर 8 तक कोई नंबर यूज़ किया हुआ है, ठीक है, देन इट इज़ डेंस स्ट्रक्चर। एंड 9 से 15 तक यूज़ किया हुआ है तो ओपन स्ट्रक्चर। फिर हमने बात की थी फिफ्थ एलिमेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड की लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी है। विट्रीफाइड बॉन्ड का V, रेजिनॉइड का B, रेजिनॉइड रेनफोर्स्ड BF, रबड़ R, रबड़ रेनफोर्स्ड है RF, शेलेक E, सिलिकेट S, मैग्नीशिया Mg। तो ये हमें कुछ लिस्ट याद रखनी है, ठीक है, कौन से टाइप का बॉन्डिंग मटेरियल यूज़ किया हुआ है। देन व्हील शेप, ठीक है ना। तो ये जो बेसिकली 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ये कॉमनली इंडस्ट्रीज़ में क्वेश्चन पूछा जाता है या हमें मार्केट में कोई स्पेसिफिकेशन सप्लाई करनी है रिटर्न फॉर्म में, तब हमें ये लिख के देनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ एब्रेसिव, then grain size of abrasives, grade of abrasives, structure, type of bond and एक identification mark रहता है लास्ट में, कंपनी का मर्जी है लिखे ना लिखे उसकी, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है एक लाइन में, देखिए ये, ठीक है ना। तो जैसे पहला लेटर है से W भी मैन्युफैक्चरर अब्रेसिव टाइप सिंबल है, ये ऑप्शनल है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरर लिखना चाहे तो लिखे चाहे ना लिखे, ऑप्शनल है। देन से इसमें लेटर A लिखा हुआ है, A, ठीक है ना। A का मतलब कौन सा अब्रेसिव हो गया, Al2O3। देन सेकंड लेटर इज 46, देन इट इंडिकेट्स ग्रेड साइज, ठीक है ना। ग्रेड साइज 46 की बात करें तो सेकंड था मीडियम ग्रेन हो गया ये, ठीक है ना। देन ग्रेड K लिखा हुआ है, K का मतलब कौन सा हो गया हमारे पास, सॉफ्ट, जैसे ऊपर हमारा इंडिकेट हो रहा है देखो इसमें, ठीक है, सॉफ्ट वाले में। देन स्ट्रक्चर 1 to 8 को हमने लिया था डेंस स्ट्रक्चर, तो ये 5 नंबर यूज़ किया, इसका मतलब ये डेंस स्ट्रक्चर का व्हील है जो हम परचेज करने जा रहे हैं। देन टाइप ऑफ बॉन्ड से V स्टैंड्स फॉर विट्रीफाइड बॉन्ड। देन लास्ट में लिखा 17 भी ये मैन्युफैक्चरर का अब्रेसिव टाइप है, ये भी ऑप्शनल है। कई मैन्युफैक्चरर इसको आगे एज ए प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, कुछ सफिक्स यूज़ करते हैं बाहर में, तो ये दोनों ऑप्शनल है। बाकी बीच वाले 5 पैरामीटर कंपलसरी रहते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन बीच में से भी पूछा जा सकता है, और अगर बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं तो ये कंप्लीट हमारा एलिमेंट्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील क्या है, ओके, और स्पेसिफिकेशंस किस तरह से, या तीसरी तरह से भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ग्राइंडिंग व्हील को सिलेक्ट करोगे तो किन किन पैरामीटर्स का कंसीडर करोगे आप, ठीक है, माइंड में कौन कौन से पैरामीटर्स लेके चलोगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, specification and selection of the grinding wheel. Thank you. Meet you in the next lecture.